Hello everyone, welcome back to my channel Innovators. Today I'm going to start with lesson number 16 SSC Board Standard 8. Lesson number 16 is surface area volume. Today we are going to start with practice set 16.1. Before we start, we have to know these two formulas, total surface area of cuboid and total surface area of cube. Okay, यही हम यूज करने वाले हैं. Also the volume, this is on page 106 and volume of cube भी दिया है, that is L cube. ठीक है, ये सारे formulas हम यूज करने वाले हैं. So let's start. This is exercise on page 108. Question number 1. Find the volume of the box if the length, breadth and height are 20, 10.5 and 8 centimeters. So length is given 20 centimeters, breadth is given 10.5 centimeters and height is given 8 centimeter. Okay, fine. What we have to find? We have to find volume of box. So वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ कितना है 20, ब्रेथ है 10.5, हाइट है 8. सो विल डू अ बिट ऑफ रेफ. 105 इंटू 20, तो 0 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे. 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और अब ये एक 0 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. ठीक है, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. अब यहाँ पे एक पॉइंट था तो हम एक नंबर छोड़ के पॉइंट डालेंगे. सो आंसर आया 1680. क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर. सो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज 1680 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर. ओके, गोइंग ऑन टू द सेकंड सम. अ क्यूबॉइड शेप्ड सोप बार हैज वॉल्यूम 150 cc. फाइंड इट्स थिकनेस एंड इट्स लेंथ इज 10 centimeter and breadth is 5 centimeter. So what is given to us? Volume of cuboid is 150 cc. लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 5 सेंटीमीटर. राइट, what we have to find? We have to find thickness. Thickness means what? Height. ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to length into breadth into height. So let's start with the solution. Volume of soap bar, length कितना है 10, breadth है 5, आपको height ढूंढना है. Volume of soap bar दिया है 150. ओके, सो ये दोनों नंबर्स नीचे जाएंगे डिनोमिनेटर में. 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा. सो हाइट आया 3 सेंटीमीटर. सो आंसर लिखोगे द थिकनेस ऑफ सोप बार इज 3 सेंटीमीटर. ओके, गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, breadth 15 centimeter and height 10 centimeter are required to build a wall of length 6 meters, height 2.5 meters and breadth 0.5 meters. तो पहले हम ब्रिक्स का लिखेंगे और फिर वॉल का लिखेंगे. तो ब्रिक का लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 15 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर. सिमिलरली वॉल का दिया है लेंथ. अभी ऑलरेडी हमने L लिया है तो अभी हम L1 लेंगे.
6 मीटर है, हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 600 मीटर्स। ब्रेथ होगा B1 दैट इज 0.5 मीटर, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और हाइट हो जाएगी H1, हाइट दिया है 2.5 मीटर, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर्स। फाइन, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ bricks that will be required to make the wall, right, to build the wall. Okay, so what will be the formula? So number of bricks is equal to volume of wall upon volume of bricks. ठीक है, so let's start with the solution. Number of bricks is equal to volume of wall क्या आएगा, L1 इंटू B1 इंटू H1, और ब्रिक्स क्या आएगा L इंटू B इंटू H। सो L1 कितना है 600, 250, 50 अपॉन 25, 15, 10, 0 0 कैंसिल, अगेन यू कैन कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा 0, 5 3 जा 5 10 जा 3 1 जा 3 2 जा। सो 200 बचा है, 10 बचा है, 200 into 10 is 2000 bricks will be required to build the wall. Okay, next, for a rainwater harvesting, a tank of length 10 meters, breadth 6 meters and depth 3 meters is built. What is the capacity of the tank and how many liters of water can it hold? Okay, so what is length? Length is 10 meters, breadth is 6 meters and depth matlab height 3 meters. Again, what formula are going to use? We are going to use first volume of the tank, that is length into breadth into height, and secondly what they have asked, how many liters. So you have to find out the capacity of the tank in liters. Okay, these were the formulas that we are going to use. Fine, let us start. So volume of tank start करते हैं पहले। लेंथ कितना है 10 इंटू 6 इंटू 3, 10 6 जा 60, 3 6 जा 18, राइट। सो 180 मीटर क्यूब आया है वॉल्यूम। नाउ फाइंडिंग द कैपेसिटी, what we will do, we will multiply the volume of tank into 1000, right? So 180 into 1000 will give us 18, ये इसका 0 1 2 3 zeros हमको और ऐड करने हैं, so many liters is the capacity of the tank. So if you put the commas, it comes to 1,80,000 liters. Okay, so this finishes the exercise. Let me know what else you want to learn. Okay, till then take care of yourself and goodbye. Hello everyone, welcome back to my channel Innovators 07. Today again I'm going to start with SSC Board Standard 8 Maths, lesson number 16, surface area and volume. Today we're going to start with the next exercise, that is 16.2. This is on page 110. Okay, you can go through the questions here on the textbook. So let's start. Question number 1. In each of the following given below, radius of the base of the cylinder and its heights are given. Then find the curved surface area and total surface area. Okay, so radius is given as 7 centimeter, height is given as 10 centimeter. So what is the formula for curved surface area and total surface area? आपको find करना है. Curved surface area of a cylinder is
2 pi r h and total surface area is 2 pi r plus h. 2 pi r plus h. ठीक है. So let's start with the first one, that is 2 pi r h. So 2 हम वैसे ही लिखेंगे, pi हम 22/7 लेंगे, r है 7 and h is 10. 7 gets cancelled. Okay, I can show a rough work here at the side. 22 into 2 is 44 and 44 into 10 is 440. So answer will be 440 square centimeter. Second हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 pi r plus h. अगेन 2 वैसे ही लिखेंगे, पाई हम 22/7 ले रहे हैं, r है 7 और h है 10. 7 कैंसिल हो गया. 22 into 2 is 44. 7 plus 10 is 17. So basically आपको 44 और 17 को मल्टीप्लाई करना है. Let's do the rough work. 7 4s are 28. 7 4s are 28 and 2 30. 4 1s are 4. 4 1s are 4. So 7 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आंसर आप लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 440 square centimeter and total surface area of cylinder is 748 square centimeter या centimeter square, जो भी आपको लिखना है. एंड प्लीज डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स जैसे मैंने यूज किया है. फाइन. सेकेंड, रेडियस इज 1.4, हाइट इज 2.1. कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. सेम सम है, फॉर्मूला है 2 pi r h और यहाँ पे है 2 pi r plus h. So we'll start with the first one, that is curve surface area. So 2 into 22/7, r है 1.4, h है 2.1. So 22 into 2 is 44 into 0.2 into 2.1. 4 2s are 8. 8 एक नंबर छोड़ के पॉइंट. ओके, साइड में रफ वर्क करते हैं. 88 into 21. 'So आंसर आया है 1848. दोनों नंबर को छोड़ के पॉइंट था, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट. सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 pi r plus h. So 2 into 22/7, r is 1.4. 1.4 plus 2.1. Again same cancellation I am doing. 22 into 4 is 44 into 0.2 into, अब 1.4 और 2.1 को आपको ऐड करना है. which becomes 3.5. 44 into 2 is 88. एक नंबर छोड़ के आपको पॉइंट डालना है. ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो आंसर हमको आया है 3080. ओके, 2 नंबर्स पे पाथ पॉइंट था तो 2 नंबर्स छोड़ के पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आंसर लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 18.41 सेंटीमीटर स्क्वायर and total surface area of cylinder is 30.80 centimeter square.
Next we are going to start with the third sum. Again r is given 2.5 centimeter and h is given 7 centimeter. Same thing we have to find. 2 pi r h है और 2 pi r plus h. Starting with the first 2 pi r h, 2 into 22 upon 7, r is 2.5, h is 7. So 7 gets cancelled. 22 into 2 is 44 into 2.5. So let's do the rough work here. 44 into 25, 5 4s are 20, 22. Okay. सो आंसर आया है हमको 110 और एक नंबर के बाद पॉइंट था इसलिए मैंने एक नंबर के बाद पॉइंट डाला है. सो 110 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच, दैट इज 2 इंटू 22 अपॉन 7. ओके, आर इज 2.5 एंड एच इज 7. सॉरी, फॉर्मूला है आर प्लस एच. Okay, now 44 into 2.5 or this will become 9.5. ओके, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेम आंसर आएगा, दैट इज 110. अभी हमने ऊपर किया है, राइट? तो हम 110 को 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगेन एक नंबर छोड़ के पॉइंट, तो हमको आंसर आया है 1045 डिवाइडेड बाय 7. तो हम डिवीजन भी कर लेते हैं. 1045 डिवाइडेड बाय 7. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 2s are 14, 7 8s are 56, 7 5s are 35. Okay, we can stop here. So आंसर आया है 149.285. So इसको हम राउंड अप करके 149.29 लिखेंगे बिकॉज 5 बड़ा नंबर है सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आंसर आपको लिखना है curve surface area of cylinder is 110 square centimeter and total surface area of cylinder is 149.29 centimeter. Okay, going on to the next sum, the fourth one. R is given 70 centimeter and height is given 1.4 centimeter. So let's start 2 pi r h and this is 2 pi r plus h. So we are going to start with the curved surface area first. 2 into 22 upon 7. R कितना है 70 और h है 1.4. So I'm cancellation. 7 1s are 7 10s are 44 into 10 into 1.4. So मैं पॉइंट हटाती हूँ और दिस बिकम्स 14 into 44. So let's multiply. So answer is 616 centimeter square. सेकेंड हमको फाइंड करना है कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस h. सो 2 इंटू 22 अपॉन 7, r है 70, 70 प्लस 1.4. अगेन सेम कैंसलेशन. 22 इंटू 2 इज
44 into 10 and this becomes 71.4. again 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पॉइंट निकल जाएगा. So I'll do the remaining multiplication, that is 714 into 44. So मुझे आंसर आया है 31416 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आंसर लिखना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 31416 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. गोइंग ऑन टू द फिफ्थ सम. फिफ्थ सम भी सेम है. रेडियस दिया है 4.2, हाइट दिया है 14. सेम फॉर्मूला है 2 pi r h and 2 pi r r plus h. So we are going to start with curved surface area, that is 2 into 22 upon 7. R is 4.2 and height is 14. 7 1s are 7 2s are 14. 22 into 2 is 44. 2 4s are 8. 2 2s are 4. So इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद द फिफ्थ सम. यहाँ पे रेडियस है 4.2, हाइट है 14 सेंटीमीटर. आर यहाँ पे मैंने सब डाल दिया है. फॉर्मूला है 2 pi r h और इसका फॉर्मूला है 2 pi r r plus h. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन 2 pi r h. यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन किया है. 7 1s are 7 2s are 22 into 4 is 44. 4.2 into 2 is 8.4. अब मैं कर रही हूँ मेरा कैलकुलेशन, दैट इज 44 into 84. 4 4s are 16. 4 4s are 16 and 1 17. 8 4s are 32. 8 4s are 32 and 3 35. सो आंसर आया है 3696. एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट डालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. सेकेंड हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 pi r r plus h. So 2 into 22 upon 7. r है 4.2, r है 4.2 और h है 14. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रही हूँ. 7 1s are 7.6 जा. ठीक है, बिकॉज 7 6 जा 42 आता है. अगेन 22 into 2 is 44 into 0.6 और ये 4.2 14 में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 18.2. अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं. 44 into 6 करते हैं पहले. अब 182 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो आंसर आया है 48048. यहाँ पे भी एक पॉइंट था, यहाँ पे भी एक पॉइंट था. 2 नंबर छोड़ के हमको पॉइंट डालना है स्क्वायर सेंटीमीटर. तो आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया है हमको 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर और दूसरा हमको आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, that is 480.48 square centimeter. Okay, going on to the next question. Question number 2. Find the total surface area. So आपको total surface area find करनी है सिलेंडर की.
डायामीटर दिया है हमको 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा d/2 दैट इज 50/2, 2 1 जा 2 25 जा, सो रेडियस आया 25 सेंटीमीटर और हाइट दिया है हमको 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr r प्लस h। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट 2 इंटू इस बार यहाँ पे सब में दिया है कि पाए हमको 3.14 यूज़ करना है, इसलिए मैं 3.14 यूज़ कर रही हूँ। r आया है हमको 25 दैट इज़ 25 प्लस 45। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 6.28 इंटू 25 और इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर आया है 70। ठीक है, अब हम करेंगे रफ वर्क, दैट इज 628 इंटू 25। अब मैं सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, बाद में लास्ट में मैं 0 डाल दूंगी। सो मुझे आंसर आया है 109900। ओके, और ये 70 का एक 0 हमको ऐड करना है और यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद हम पॉइंट डालेंगे तो आंसर आया है 10,990 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर आप लिखोगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ cylinder is 10,990 centimeter square. Going on to the third sum. Find the area of the base, okay, or radius of the cylinder if the curved surface area. So curved surface area दिया है हमको 660 square centimeter और हाइट हमको दिया है 21 सेंटीमीटर। रेडियस और कर्व एरिया ऑफ बेस हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो अभी तक याद हो गया होगा, 2πrh, और एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, राइट, उसका फॉर्मूला है πr स्क्वायर, बिकॉज सर्कल होता है तो सर्कल का फॉर्मूला हम लिखेंगे। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विथ कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πrh। कर्व सरफेस एरिया दिया है 660, 2 इंटू पाई है 22/7, r हमको फाइंड करना है, h है 21, तो 7 1 जा 7 3 जा मैं कर रही हूँ कैंसिल। ओके, और बाकी जितने भी नंबर्स है सब बेस में आएंगे, दैट इज 2 इंटू 22 इंटू 3 इज इक्वल टू r। फाइन, अब कैंसिलेशन करना है, मैं 11 के टेबल में कर रही हूँ। 11 2 जा 11 6 जा 0, 2 1 जा 2 3 जा 0, 2 1 जा 2 15 जा 3 1 जा 3 5 जा। सो r आया है 5 सेंटीमीटर। सेकेंड हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, और उसका मैंने कहा था फॉर्मूला लेंगे हम πr स्क्वायर। सो पाई इज 22/7 इंटू 5 इंटू 5, सो 22 इंटू 25/7 आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे अगेन हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, 22 इंटू 25 करना है, अब इस नंबर को हमको 7 से डिवाइड करना है, तो डिवीजन में यहाँ करती हूँ, 7 1 जा 7, 5 बचा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2
ओके, देन ये हमको 550 को 7 से डिवाइड करना है। 7 7 ज़ा 49, 6 बचा, 0 नीचे, 7 8 ज़ा 56, 4 बचा, पॉइंट डाला, 0, 7 5 ज़ा 35, 5 बचा, 0, 7 7 ज़ा 49, 1 बचा, 0, 7 1 ज़ा 7। सो बेसिकली आई गॉट 78.571। इसको राउंड अप किया तो 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, गोइंग ऑन टू द लास्ट सम, दैट इज द फोर्थ सम। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंडर कंटेनर which is open at one side and whose diameter is 28 and the height is 20. Okay, so diameter दिया है 28, therefore radius will be d upon 2, that 28 upon 2, so radius आएगा 14 सेंटीमीटर। सेकेंडली हाइट दिया है हमको 20 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है हमको, लिड की हाइट दिया है, तो दैट आई एम टेकिंग h1 एंड आई एम टेकिंग एज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमको फाइंड करना है area of sheet required to make the container. What formulas we are going to use? We are going to use curved surface area का formula, that is 2 pi r h, और area का formula that is pi r square circle का। So area of sheet required to make the container will be curved surface area minus area of the base, that is 2 pi r h minus pi r square। so यहाँ पे हम देखेंगे pi कॉमन है, r भी कॉमन है, क्या बचा 2h प्लस एक r। ठीक है, सो pi है 22/7, r हमको 14 आया है, सो 2 इंटू h कितना है 20 और r है हमारा 14। सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 22 इंटू 2 इज़ 44 और 20 इंटू 2 इज़ 40 प्लस 14, सो 44 इंटू 14 प्लस 40 इज़ 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 54 इंटू 44, तो मुझे आंसर आ रहा है 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको लिड का भी फाइंड करना है, राइट। सो लिड के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, सेम हमको लेना है। अगेन इसमें पाई कॉमन है और आर कॉमन है, बचा 2h प्लस आर। ओके, पाई है 22/7, इस बार हमको आर लिड का लेना है, दैट इज 14, तो 2 और हाइट है लिड की 2 अगेन और 14। ठीक है, 20 नहीं लेना है हमको, 2 लेना है। सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो यहाँ पे आएगा 44 और 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 14 इज 18, सो 44 इंटू 18 करना है हमको। तो आंसर हमको आया है 792 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो सिलेंडर का हमको आया है 2376 और लिड का आया है हमको 792। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।